नमस्कार। आपको बता दें कि ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की टीम ने नई दिल्ली में रशियन हाउस के साथ हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर समारोह में प्रोफेसर एंटोन ओलेगोविच, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के डीन, ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और श्री ओलेग ओसिपोव, नई दिल्ली में रशियन हाउस के निदेशक ने भाग लिया। उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में रूस एजुकेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर सैयद के वाशिम और रूस शिक्षा के निदेशक डॉक्टर दिनेश सिंगला जी और प्रिया मल्होत्रा जी उपस्थित रहे। इस सहयोग का उद्देश्य न केवल भारतीय मेडिकल छात्रों को ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की ओर आकर्षित करना है, बल्कि देश के इच्छुक छात्रों के बीच रूसी शिक्षा को बढ़ावा देना भी है। ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी उन भारतीय छात्रों के लिए शीर्ष विकल्पों में से एक रहा है जो रूस में MBBS की पढ़ाई करना चाहते हैं। ऑरेनबर्ग भारतीय छात्रों को उत्कृष्ट एजुकेशन सुविधाएं प्रदान कर रहा है और भारतीय लाइसेंसिंग परीक्षा में अपने स्नातकों का अनुपात दिखाता है, जिसे विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा के रूप में जाना जाता है। शिक्षा की उच्च गुणवत्ता के साथ छात्रों को रहने के लिए आरामदायक छात्रावास, भारतीय भोजनालय जहां उन्हें भारतीय भोजन, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों के अवसर मिलते हैं। आप देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। My dear colleagues, shall we start our ceremony of the signing of the agreement between the Orenburg State Medical University and the Russian House in New Delhi? This agreement has been elaborated in partnership with the company Ross Education, which is presented here by her chief, Mr. Zaman, and myself, Director of Russian Cultural Center, Director of Russian House in New Delhi, Oleg Osipov. So there will be a press release for the press. I think that there it is. Yep. Okay, and you may. I think that we will make it that way. First, we will sign the documents, and then we will be able to discuss some educational problems and not problems, some educational questions concerning the cooperation between Russia and India, and you are free to ask questions to all of us. And so I propose that we begin signing the document. I would like to say about the contents of this document signed right before your eyes. So it's a document between the university and the Russian Cultural Center, which is called Russian House. And in this document, you may see the procedures of the protocol of different types of the cooperation between the two sides, which include different points. Some of them are, for example, that we are always the general one, that the Russian House and the university are always disposed to and open to cooperation with each other. That's the general point. And then there are some things in detail that we give our premises for the university when it comes to make its exhibitions, other events, that we support each other in terms of mass media. I mean that we, on our Facebook accounts and other in other socials, we put information about each other and so on and so on. And I want to say that this is not the first time that we signed such a document, because already there exists the previous document of this kind. It has expired, so we decided to prolong it and to sign another one for the next period. And as for the university, I think that my colleague will tell you better than myself about the university itself. Thank you, everyone. About this agreement of cooperation, yes, we already signed with Russian House, and we're proud that this document already worked for 2 years. And I can tell you that by this agreement we are the part of educational fair each year, and 4 years already we are delegates of this fair. And this fair that was done each year by Russian House and Rus Education, this is really mechanism that helps students to come for MBBS, and not only MBBS, but telling MBBS, this is one of the most interesting field of education for Indians abroad. I mean, and this is mechanism that helps universities too. That's why today we signed new agreement, because
This is real work, and I want to tell thanks to Russian House for this work. This is very needful moment and very needful mechanism. And I believe that in future it will help such as it works years ago. Thank you. ये जो कोऑपरेशन एग्रीमेंट है रशिया के सबसे जो फेमस यूनिवर्सिटी है ऑरेंजबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट अभी पढ़ते हैं, वो यूनिवर्सिटी और जो रशियन सेंटर ऑफ साइंस एंड कल्चर रशियन हाउस है दिल्ली में, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट से सारे इंडियन स्टूडेंट जो ऑरेंजबर्ग पढ़ने जाना चाहते हैं उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। रूस एजुकेशन इस एग्रीमेंट का बीच में है, सारे स्टूडेंट्स को एडमिशन से शुरू कर डिग्री तक हम मदद करेंगे। ये एग्रीमेंट अभी साइन हुआ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है अभी, क्योंकि 31 जुलाई को यहाँ पे रशियन एजुकेशन फेयर होने जा रहा है। रशियन एजुकेशन फेयर में रशिया के टॉप 16 यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करेंगे, जिनमें से ऑरेंजबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है। इसलिए जो स्टूडेंट्स डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए रशिया एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, 1400 प्लस इंडियन स्टूडेंट्स MBBS की वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं इस वक्त। यूनिवर्सिटी में और अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, उनको डायरेक्ट एडमिशन के लिए एक अच्छा चैनल देने के लिए ये आज का एग्रीमेंट साइन किया गया है। जो नए न्यू NMC रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से इस वक्त रशिया एक मात्र ऑप्शन है जो NMC गाइडलाइंस के हिसाब से बच्चों को डिग्री दे सकता है, जिसके बाद वो वापस आके यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। नए गाइडलाइंस के हिसाब से अब बच्चे फिलीपींस नहीं जा सकेंगे, चाइना बच्चे अवॉइड करेंगे। यूक्रेन की सिचुएशन के हिसाब से इस वक्त रशिया एक टॉप चॉइस है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, मात्र ऐसी चॉइस है जहाँ पे उनको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज से अच्छी क्वालिटीज़ के साथ प्रॉपर मेडिकल एजुकेशन मिलेगी और उनकी वापस आके डिग्री यहाँ मान्य होगी। ऑरेंजबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने इस इंडिया के लाइसेंसिंग एग्जाम, जो कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन कहा जाता है, जिसका रिजल्ट आमतौर पर 15% के आसपास रहता है, यूनिवर्सिटी ने इंडियन करिकुलम को अपनी यूनिवर्सिटी में शुरू किया है, जिससे इनका जो रिजल्ट है फर्स्ट अटेम्प्ट का वो 40% से ऊपर रहता है। तो इसलिए ये यूनिवर्सिटी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक टॉप चॉइस है, जहाँ पे अच्छी एजुकेशन के साथ कंफर्टेबल लिविंग कंडीशंस, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ का भी ध्यान रखा जाता है, ताकि उनको एक बेहतरीन डॉक्टर बनाकर वापस इंडिया लाया जाए। इनका जो या रूस एजुकेशन का उद्देश्य सिर्फ एडमिशन करवाना नहीं, बच्चों को एक फुल फ्लेज डॉक्टर बनाना है, जिसमें ऑरेंजबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एक मेजर रोल प्ले करता है। और रशियन हाउस की हेल्प से अब हम उस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को 1400 से 2000 से 3000 तक लेके जाने की हम लोग कोशिश करें। इसके अलावा रशिया में बच्चों को प्रॉपर खाने की फैसिलिटी मिले, उसके लिए हॉस्टल के अंदर ही इंडियन मेस की व्यवस्था की गई है, जहाँ पे इंडिया से कुक्स वहाँ खाना प्रोवाइड करते हैं और बच्चों को इंडियन खाना दिया जाता है। जैसे अपने यहाँ पे एयर कंडीशन होता है, वहाँ पे सेंट्रली हीटेड हॉस्टल्स होते हैं, वहाँ पे बच्चों को कंफर्टेबल रहने के लिए स्टडी रूम्स हॉस्टल के अंदर अवेलेबल है। मतलब हर वो सुविधा जो इंडियन बच्चों के हिसाब से चाहिए वो सब वहाँ पे अवेलेबल है। हर यूनिवर्सिटी में बच्चों को डिग्री वहाँ पे मिली है, बच्चे अभी वहीं पे पढ़ रहे हैं, क्लासेस उनकी फिजिकल फॉर्मेट में वहाँ हो रही है। रशिया में यूनिवर्सिटीज में एनवायरनमेंट सेफ है, सिक्योर है, बच्चों को किसी तरह की कोई इश्यूज नहीं है। रशिया और यूक्रेन के बीच में अभी जो माहौल चल रहा है उस पर क्या लग रहा है, क्या इंडियन स्टूडेंट रशिया या यूक्रेन जाना पसंद करेंगे? मार्केट का जो स्टडी है वो बताता है कि रशिया बच्चे फेवर कर रहे हैं जाना, यूक्रेन अभी नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन रशिया में बच्चे और ज्यादा अच्छे से इंटरेस्ट ले रहे हैं, एडमिशंस ले रहे हैं, इसलिए बच्चे भी प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि रशिया सेफ है, सिक्योर है और बच्चों को अच्छी एजुकेशन देगा NMC की गाइडलाइंस के हिसाब से। आज के साइनिंग से पहले वहाँ पे क्या सुविधा नहीं थी जो साइनिंग के बाद आप और ज्यादा उनकी सुविधा दें? ये जब साइनिंग के बाद अभी वहाँ पे एक पूरा प्रॉपर स्टूडेंट कैंपस तैयार करने की कोशिश शुरू करेंगे हम लोग वहाँ की लोकल गवर्नमेंट के साथ। ऑलरेडी जब पिछला एग्रीमेंट साइन हुआ था उसके तहत रूस एजुकेशन कंपनी ने वहाँ की सरकार के साथ और यूनिवर्सिटी के साथ मिलके 9 फ्लोर के एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जो बच्चों के हॉस्टल के रूप में तैयार की गई है अभी वहाँ पे तैयार करवाई है, जिसमें इस वक्त 600 से ज्यादा बच्चे जो है वो रह रहे हैं। इस एग्रीमेंट के बाद अब हम एक प्रॉपर और बड़ा एक स्टूडेंट कैंपस तैयार करेंगे, जहाँ पे क्लासेस, शॉप्स, हॉस्टल्स सब कुछ एक कैंपस के अंदर हो। If I understood you correctly, yes, I think it's the right time. It's always the right time to
go for foreigners to study in Russia, because if you were speaking about the special military operation, weren't you? Because I didn't understand Yes. in Hindu. Yes, about. yes. So it interferes in no way, this military operation which is being held at one part of Eastern Europe, because Russia is very big, and you may go to any university in all parts of Russia, Far East, Siberia, even Moscow, even the western parts of western regions of Russia. So no problem. And the fact is that Russian education is attractive. Medical education is more attractive to foreign students than in any other country. You get good quality education in low fee structure along with comfortable hostels and living conditions. अगर आप अपना MBBS रशिया से करना चाहते हैं तो ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं डायरेक्टली ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, प्लीज कॉन्टैक्ट रूस एजुकेशन या रशियन हाउस, जो कि इस वक्त 5 सिटीज में है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, त्रिवेंद्रम, चेन्नई। आप कहीं पे भी जाके अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं। रूस एजुकेशन के और भी ऑफिसेस अलग अलग सिटीज में लोकेटेड हैं, इंडिया के 18 बड़े शहरों में लोकेटेड हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एक अच्छे डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।